नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केवल रीडिंग करने वाले हैं, रीडिंग प्रैक्टिस होने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी कि एक भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं बताने वाला हूं। आज केवल और केवल रीडिंग प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो बहुत अच्छे समझ आता है, हर एक वर्ड की मीनिंग समझ आती है, बट रीड कैसे करना है, हमें थोड़ा फ्लो में रीड करना है तो हम किस प्रकार से करें वो भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बहुत स्पीड में यहाँ पे ट्रांसलेट बहुत स्पीड में यहाँ पर रीड नहीं करूँगा, ताकि आपको भी हर एक वर्ड को कैसे पढ़ना, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी समझ आए, है ना। अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझाते हुए पढ़ूंगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल ऐसा रुक रुक के नहीं, थोड़ा सा फ्लो में ही पढ़ेंगे, बट आप लोगों को समझ आ जाएगा किससे हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। द स्नेक हस्बैंड। अ लॉन्ग टाइम अगो a wealthy Brahmin lived in a town. He had a beautiful and loving wife, a big house, ample wealth, and knowledge of the scriptures. He was called by the king, merchants, the rich, and the poor to perform pujas and yajnas in their homes and temples. That is how the Brahmin earned a living. But the Brahmin had a worry. His wife was always sad, and sometimes she used to cry also. The reason for this was that they had no children. Every day his wife would watch the children playing in the neighboring courtyard. This would make her feel deprived of a child. The Brahmin loved his wife very much, so he could not bear her sadness. One day the Brahmin thought, I have the knowledge of all the scriptures. I perform so many rituals for others. I'll perform a yajna to please the gods and ask for a beautiful child as our ऑफस्प्रिंग। लेकिन ये एक्चुअल में ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, एस लिखा हुआ है, ऑफरिंग नहीं है, ऑफस्प्रिंग है। इसका मतलब वंश वगैरह होता है ना, वंश वंशज ऐसे। सो द ब्राह्मण गैदर्ड द नेसेसरी आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द यजना। आफ्टर आवर्स ऑफ द रिचुअल्स ही हर्ड अ डिवाइन वॉइस। इट सेड, ओ ब्राह्मण, we are pleased by your offerings and prayers. Very soon your wife will bear you a son, who will be a handsome young man when he grows up. The Brahmin thanked the gods and rushed to his house to tell the good news to his wife. His wife was overjoyed. A few months later, the Brahmin's wife gave birth to a snake. The birth of a snake became the topic of gossip among the people of the town. Many told Brahmin's wife to abandon the snake in the forest. But the Brahmin and his wife did not agree. They brought up the snake as they would bring up a son. They loved him very much. They looked after him as though it was not a snake but a human. They fed him with milk many times a day.
Years went by, ठीक है, years went by and the Brahmin's family was going happy. One day, as the Brahmin's wife was sitting in her courtyard, she saw a marriage procession passing by. Suddenly, she had tears in her eyes. The Brahmin saw this and asked, "Why are you crying, my dear?" Our son had also reached a marriageable age, but you have not made any arrangement for his marriage. Ah, the Brahmin sighed, but where will I get a wife for our snake son? I think I'll need to go to the underworld to beseech Vasuki, the serpent king. ठीक है, beseech प्रार्थना करने को बोलते हैं. To provide our son with a life partner. I think only he can give his daughter in marriage to our snake son. At this, the Brahmin's wife started crying even more loudly. As the Brahmin loved his wife very much, he wanted to relieve her sad and feelings. He said, "All right, put my clothes together. I'll be going away for some days. I'll look for a suitable bride for our snake son." On that evening, the Brahmin left his town. As night fell, he entered the neighboring town. To spend the night, he decided to stay at a friend's place who lived in that town. His friend was also a Brahmin. He welcomed his guest warmly. After some rest, dinner and fruits were served. The Brahmin had some talk with his friend before going to sleep. Next day, as he was about to leave, his friend asked, "We had a long conversation last night, but you did not tell why you are undertaking this long journey all around the country." The Brahmin said, "My friend, I have a son who is of a marriageable age. I have been asked by my wife to look for a suitable bride for him." Oh, what a great coincidence! The Brahmin's friend exclaimed, "I also have a beautiful and talented daughter whom I want to marry off as soon as possible. I would be honored if you accept her as your daughter-in-law." The Brahmin was happy to hear this, and the two friends embraced each other. Embraced भी पढ़ते हैं, embrace होता है गले लगाना. Joyfully. Then the Brahmin's friend arranged for some attendants and relatives to accompany his daughter to the Brahmin's town, so that the marriage would be performed there. But when the attendants and relatives reached the Brahmin's place, they were all shocked to see his snake son. One of them said, "We have been cheated. The Brahmin is some sort of a blank magician.
He wants to marry off a snake to our beautiful girl. Another relative suggested to the girl, dear, don't marry this snake. You are beautiful and talented. You will find many handsome young men to be your life partner. Don't ruin your life by marrying the ugly and slithering creature. रेंगने वाले slithering बोलते हैं, ruin है ना, बर्बाद कर देना. But she said, लेकिन, no, I cannot do that. My father has My father has best told me इंपॉर्टेंट को मैं लाइन कर दी हूं, बाद में आपको सब पता. वैसे बेस्टोड यानी प्रदान करना, किसी को देना, उसे बेस्टोड बोलते हैं. मी टू हिम एंड दिस स्नेक इज नाउ माई हस्बैंड. आई हैव accepted him as my partner. This is to keep my father's word and my desire. So no one made any further comments. Soon the marriage was solemnized. से solemnized पढ़ते हैं, ठीक है. solemnized का मतलब होता है संपन्न होना, पूरा काम. solemnized है ना, solemnized पढ़ दिया. solemnized तो लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा. Marriage was solemnized between the Brahmin snake son and the beautiful girl. The girl proved to be a devoted wife and a dutiful daughter-in-law. Dutiful नहीं है, dutiful है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही ईमानदार, है ना, वो कर्तव्यनिष्ठ थे. He served her husband and her in-laws with great love, care and respect. One night, as she lay in bed, the silver chest's lid was ajar. The silver chest had the silk bedding in which her snake husband slept. Suddenly, a handsome young man emerged from the chest. Actually, he resided in the snake's body, and the snake released him only at night. When the girl saw a stranger in her room, she panicked. She got up and tried to run out of the room. But the young man went and closed the door. He calmed her down and said, I am no other than your husband. The man you have married. I have been held captive in the snake's body for many years now. The girl had understood everything now. Meanwhile, the Brahmin had woken up to drink water. As he passed by his daughter-in-law's room, he heard a man's voice. Curious to investigate, he went near the door. He heard the voice of a young man. At dawn, the Brahmin told his wife everything that he has heard. Both of them knocked at their daughter-in-law's door. On entering, they saw a handsome young man lying asleep in the bed. The Brahmin's wife kept looking lovingly at her daughter-in-law. The Brahmin brought a burning stick in his hand. He burned the snake skin that lay in the chest so that his son could not enter back again. Thus, the Brahmin snake son turned into a handsome young man, and the beautiful girl got her actual husband. तो ये आपको स्टोरी भी समझ आएगी होगी, बहुत सारे जगह कुछ आपको नए नए वर्ड की मीनिंग मिली होगी. तो आज तो केवल रीडिंग ही करना था. देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर रीड किया.
मुश्किल से आपको 15 मिनट लगे होंगे, वो भी थोड़ा सा मैंने स्लो रीड किया ताकि आप लोग को हर एक वर्ड थोड़ा सा अच्छा से समझ आ जाए। इससे स्पीड भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब रीडिंग कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। ऐसे रीड कीजिए कि सामने वाले को भी समझ आए, है ना। जैसे स्कूल में भी रीड करना है, कॉलेज में करना है, कहीं आपको किसी को पढ़ के सुनाना है, तो ऐसे रीड कीजिए कि सामने वाले को समझ भी आए। अब एकदम स्पीड पढ़ेंगे, ये दिखाएंगे कि मुझे अच्छा पढ़ना आता है, तो स्पीड पढ़ना अच्छा पढ़ने की निशानी नहीं है। आप जहाँ पे कॉमा लगाए वहाँ थोड़ा रुकिए, फुल स्टॉप में थोड़ा और रुकिए, तो आप जो आपके उसके हिसाब से आपको रुकना है, ठीक है। जैसे कि हमने जैसे रीड किया वैसे ही आपको रीडिंग करनी है। अब रीडिंग करना, ट्रांसलेशन करना दोनों अलग अलग चीज़ है। रीडिंग करते समय आपको सही प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना होता है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कॉमा है, ठीक है। इसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी क्या होता है, जहाँ पे कॉमा है ना, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कॉमा, ये सभी का हम ध्यान रखते हैं, तो उसे ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। उसका हमें ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो बताएंगे आज की ओनली रीडिंग क्लास आपको कैसे लगी। इस स्टोरी की यदि आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर नेक्स्ट डे इसका ट्रांसलेशन लेकर आऊँगा। हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेट करेंगे। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप नॉवेल वगैरह का भी ट्रांसलेशन कीजिए, तो बिल्कुल कोशिश करूँगा मैं। कोई नॉवेल यदि मिलता है, PDF फॉर्म मिलता है ना, या फिर पूरा कोई नॉवेल ही ले आऊँगा और उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा। बट मुझे बस यही डर रहता है, और कोई बात नहीं। आपको बता दूँ, सच्चाई ये है कि जैसे किसी नॉवेल को मैंने रीड किया है ना, और उसे मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, तो कई बार बहुत बार ऐसे हुआ कि कॉपीराइट्स वगैरह आ जाते हैं, कि जिसकी नॉवेल है, जिसके नाम से जो अथॉरिटी जिनकी है ना, तो वो लोग क्या कर देते हैं, मेल करते हैं, या फिर कई बार तो स्ट्राइक आ जाती है। और यदि भगवान न करे 2-3 स्ट्राइक आ गई एक साथ, तो चैनल ही डिलीट हो जाता है। बस यही डर है। कई बार ऐसे हुआ 1-2 बार मेरे साथ, बस इसलिए मैं नहीं करता हूँ। और कोई बात नहीं, बहुत से लोग लिखते भी हैं, सर आप इसका नॉवेल का कीजिए, इसकी स्टोरी कीजिए, ये सब में भी स्ट्राइक आती है कई बार। ऐसे नहीं कि स्टोरी हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी किसी की भी स्टोरी, भाई ये भी तो उनका अधिकार है, उन्होंने मेहनत से है ना स्टोरी को बनाई, हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। लेकिन उन्होंने भी फ्री में, यानी मैंने खरीदा है, बट मैं तो आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ ना, कोई बिना चार्ज लिए। बट क्योंकि मैं यहाँ पे केवल रीड नहीं करता, मैं ट्रांसलेशन भी करता हूँ, तो यूट्यूब इस चीज़ को समझता है। और सामने वाले जो है ना, बहुत सारे मेल भी आए थे, उन्होंने कहा भी था कि आप इसका PDF किसी को है ना फ्री में शेयर ना किया करें। आप ट्रांसलेशन करते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना अच्छी बात है, समझाना अच्छी बात है, बट इसका पूरा बुक का PDF आप लोग ना दिया करें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर पूरा बुक का PDF भेज दीजिए, इसलिए ही मैं सेंड नहीं करता हूँ। नहीं तो मेरे ऊपर फिर आप सभी जानते हैं कि है ना, जो इनके जो लेखक हैं, जो इनके मालिक हैं, भाई वो लोग क्या कर देंगे, हमारे ऊपर केस कर देंगे, और बहुत बड़ा हर्जाना भी देना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चैनल बनाते हैं। ऐसे नहीं किसी के भी उठा के कुछ भी दे दिए, और ऐसे नहीं हो पाता। तो फिर मैं कोशिश करूँगा, कोई नॉवेल का ट्रांसलेशन करूँगा। यदि किसी प्रकार की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा कि भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि नहीं होती प्रॉब्लम, तो फिर मैं नॉवेल का, और नहीं तो कम से कम 1-2 उसका जो चैप्टर वगैरह रहते हैं है ना, कि अलग अलग पार्ट रहते हैं, तो कुछ पार्ट्स का मैं ट्रांसलेशन करके बता दूंगा। क्योंकि नॉवेल तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी स्टोरी रहती है, बहुत लंबी, और ये सही बात है कि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको, नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं। ये तो है, ये आज किसी ने कमेंट किया था, मैंने देखा है। तो इस प्रकार कमेंट मैं पढ़ता हूँ ज़रूर, मैं देखता भी हूँ, और जो जो मुझे लगता है कि हाँ किया जा सकता है वो मैं करता हूँ। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए नॉवेल्स और भी बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो बुक्स वगैरह रहते हैं उसमें भी बहुत सारे हैं ना आपको मिलते हैं वहाँ पे। और न्यूज़पेपर की जो ट्रांसलेशन है वो भी मैं लाने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल में बने रहें। और आज की क्लास आपको कैसे लगी, स्टोरी समझ आई तो कैसे स्टोरी आप बताएंगे, नहीं समझ आई तो रीडिंग समझ आया कि नहीं, पढ़ना कैसे समझ आया कि नहीं, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये समझ आया कि नहीं, और नहीं आया तो कमेंट करेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और ट्रांसलेशन कैसे करना है ये तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। इस स्टोरी का यदि आप ट्रांसलेशन चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, बिल्कुल स्टोरी का ट्रांसलेशन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आप स्टूडेंट हैं, पहले से मेंबर हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करें, अच्छे से एक लाइक कर दिया करें। और ऐसी ही अच्छी स्टोरीज़ और अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे है। विष्णु ATP सर्च करेंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ताकि इसका PDF और बहुत सारी स्टोरी जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप लोग रीड करके खुद फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।